today we are planning to do the reading part, and the most vulnerable section of reading is true, false, and not given, or yes, no, not given is what I am going to take. And as I have told you, I am going to take a test at the end of this session, and I want everybody to attend the test. Last time भी आप लोगों ने काफी भारी मात्रा में you people participated in speaking test, and I was very happy. Now today, we are going to take a writing test at the end of the session, preferably. Okay. Now, before we do that, let us discuss out few things. I want to take a small passage of yes, no, not given, और दूसरा उसका नाम है true, false, not given. Just for those who have not touched the reading part, it's basically a part of the reading session in which a paragraph is given to you and there are questions below the paragraph or above the paragraph. And अगर question read करना है आपको, always the technique is to read the question first, don't read the paragraph first. एक साथ एक या दो ही क्वेश्चन पढ़े. Now many students read all the questions. You are not going to remember each and every information, piece of information provided in all the questions. Instead, मैं ये recommend करूंगा कि आप सिर्फ एक या दो क्वेश्चन एक साथ पढ़े, प्लीज, and try to remember it in your native language. Now this is very very important. काफी instructors ऐसा बोलते हैं आप इसको इंग्लिश में याद रखो, but don't do that, my dear students. The best way to understand, because true false not given बहुत बहुत परेशान करता है लोगों को, और उसी के कारण I would strongly recommend that when you read the question, try to understand that in your local language. For example, if you are speaking Hindi or if you are speaking Gujarati or जो भी है आप, for example, I strongly recommend that you understand that in your local language. बहुत important है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है टुडे एम्प्लॉइज आर फेसिंग ए रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, तो उसको गुजराती में हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए. आज एम्प्लॉइज રિડક્શન ફેસ કરી રહ્યા अपने વર્કિંગ અવર્સ में. આજે એમ્પ્લોઈઝ ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે એમના વર્કિંગ અવર્સમાં. this way you try to understand that very specifically in हिंदी और गुजराती लैंग्वेज, वो आपकी लैंग्वेज है, मदर टंग. डोंट ट्राई टू स्टिक टू द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट कि सर नहीं मुझे इंग्लिश में याद रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी उसमें जो बारीकाई होती है वो आपको परेशान कर देगी. ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट the better you understand the question, I am talking particularly of true, false, and not given, and yes, no, not given. These are true, these are the questions which basically give very torrid time to the exam, the test takers. The easier it will be to the answer. For example, let's understand what true, false, and not given actually means in context of the IELTS test. अब यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स यस या फिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन की जो डेफिनेशन है वो आप जरा गौर से देखिए. यहाँ पे लिखा है if the statement agrees with the views of the writer. No, when if the statement contradicts with the views of the writer. और not given का मतलब है if it is impossible to say what the writer thinks about this. मतलब अगर आप पता नहीं चल रहा है कि ये राइटर क्या कहना चाहता है, then you go for not given. But if I go into the detail, if I do the the operation of those things, तो इसका मतलब ये है ट्रू का मतलब दिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू इफ इट मैचेस द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज. तो क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है, इफ इट मैचेस द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, देन इट इज गोइंग टू बी ट्रू. मैच होनी चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड मैच द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज. फॉल्स if the statement is opposite to what is mentioned in the passage, then the answer is going to be false. मतलब जो आपकी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो है और पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन है, दैट बेसिकली शुड बी ऑपोजिट, उल्टी होनी चाहिए, तब जाके उसका आंसर है फॉल्स. अब नॉट गिवन को हम लोग थोड़ा सा और बाइसेक्ट करते हैं. इफ द स्टेटमेंट नाइदर मैचेस नॉर इज ऑपोजिट, तो आप वैसे भी कर सकते हो. अगर वो ट्रू और फॉल्स नहीं है तो नॉट गिवन है. सी वन वे ऑफ मूविंग टू नॉट गिवन इज कि अगर वो मैच भी नहीं करती और वो ऑपोजिट भी नहीं है, दी ही नहीं है, वो तो है ही, बट अगर वो मैच भी नहीं करती और ऑपोजिट भी नहीं है, देन द आंसर हैज टू बी नॉट गिवन. नाउ रिमेंबर वन थिंग, keep one thing in mind, the passage is based on facts. So either the information in the statement should exactly match with the passage or it should be completely opposite. There is no possibility of a similar or near similar statement. ये इसका कोई for example जगह नहीं है कि स्टेटमेंट उससे सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, ऐसा नहीं करना है आपको. तो दो ही चीज याद रखनी है, इट शुड मैच तो ट्रू, अगर विपरीत है मतलब ऑपोजिट है तब फॉल्स, और मैच भी नहीं होता और ऑपोजिट भी नहीं है तब जाके उसका आंसर होगा नॉट गिवन. सो जस्ट हैव दिस सिंपल थिंग इन योर माइंड. अब इसके लिए तीन क्या करेंगे आप, वी हैव डिस्कस्ड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मेनी अ टाइम्स इन आवर पास्ट लेक्चर्स, बट जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल रिकॉल, अच्छे ये इंपॉर्टेंट चीज को बार बार दोहराना
इससे आपका जो दिमाग में वो ताजा हो जाएगा. ऑलवेज यूज दिस 3 स्टेप मेथड फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन. रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड फोकस ऑन इंटरप्रिटिंग इट्स मीनिंग इन योर माइंड इन योर ओन नेटिव टंग. मैंने पहले भी कहा था, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट टू योरसेल्फ. आपने जो भी स्टेटमेंट पढ़ा उसको वैसे पढ़े दैट यू माइट नॉट बी रिक्वायर्ड टू रीड इट अगेन. सी मेनी टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पढ़ते बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे बिकॉज दे हैव नॉट रीड द क्वेश्चन थॉरली, दे अगेन रीड द क्वेश्चन. तो एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 बार वापस देखने पन्ना घुमाना पड़ता है इधर उधर. इट वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम एंड बेसिकली आप भी अनक्लियर रहते हो. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हो उसको अपनी मदर टंग में अनुवादन कीजिए एंड ट्राई टू सी कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग, एक एक चीज को छोड़ना नहीं है. बहुत सारे क्वालिफाइंग वर्ड्स है, समटाइम्स, मैनी, मोस्ट, ये सब चीज को बिल्कुल देखते हुए ट्राई टू कन्वर्ट दैट इन योर मदर टंग. तो आपका काम आसान हो जाएगा. This will help you to understand the exact meaning of the statement. This is the specific technique that I'm only insisting you people to utilize in true false not given. इतना सारा ध्यान दूसरे अलग कोई टाइप के क्वेश्चन में शायद नहीं रखना पड़ रहा है जितना हमें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में रखना पड़ता है. Then read the passage and select the section which talks about the information present in the question statement. दूसरा काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, अपनी मातृभाषा में उसको अनुवादन किया and then try to locate the part of the passage in which the exam, the answer might come. Try to avoid interpreting the answer from the nearly similar statements in the passage. Nearly similar statement passage के साथ नहीं करना है. मैंने बताया था कि exactly match होना जरूरी है. If you find the information in the statement is clearly matching with the facts stated in the passage, then select true. तो अगर exactly match होती है तो आप इसको true कर देंगे, वो तो आसान है. This is easy. But to select false or not given, अब ये तरीका मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मैं वापस डिस्कस करना चाहूंगा कि इफ यू आर बेसिकली कंफ्यूज बिटवीन फॉल्स एंड नॉट गिवन, एक छोटी सी मेथड है. सी द पैसेज एंड आस्क योरसेल्फ, इज द ऑपोजिट ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू? इफ यस, देन गो फॉर फॉल्स, अदरवाइज सिलेक्ट नॉट गिवन. वापस दोहराना चाहूंगा, ट्रू तो एग्जैक्टली मैच करता है तो वो तो ट्रू है. ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड नॉट गिवन. तो इसका सुंदर तरीका ये है, कोई भी स्टेटमेंट है पहले ही कर दिए पैराग्राफ. अगर आप कंफ्यूज हो तो पहले जो आपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ा उसको ऑपोजिट कीजिए. अब उसको ऑपोजिट करने के बाद वो जो ऑपोजिट की हुई इंफॉर्मेशन है उसको पैराग्राफ में मैच कीजिए. अगर वो मैच होती है तब जाके वो आंसर फॉल्स है, और नहीं होती तो आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. सिंपल सी है. वापस दोहराना चाहूंगा, ट्रू तो आसान है, सामने आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड नॉट गिवन. क्या करना है, अगर आप दुविधा में हैं, प्लीज मेक श्योर जो भी क्वेश्चन है उसका ऑपोजिट कीजिए. पैराग्राफ में जो दिया है उसका नहीं, आपने स्टेटमेंट पढ़ा उसका ऑपोजिट कीजिए, एग्जैक्टली ऑपोजिट कीजिए, और वो जो आपने किया स्टेटमेंट उसको पैराग्राफ में कंपेयर कीजिए. अगर वो मैच होता है तो आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स, और एल्स इट इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? यस और नो? छोटा सा है लेकिन पता चल रहा है आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से स्टूडेंट्स? यस और नो? सिंपल सा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. फॉल्स को क्या करना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, बहुत सिंपल है. क्लियर हुआ? या सी काफी बच्चे ऐसा बोल रहे सर रिपीट करना चाहेंगे. देखिए क्या करना है फॉल्स में, जस्ट लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. क्या करना है आपको फॉल्स के लिए, अगर आप कंफ्यूज्ड हो टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड नॉट गिवन, ट्रू तो सिंपल है, तो क्या करना है, स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का है उसका ऑपोजिट कीजिए, मतलब पैराग्राफ में देखने से पहले. और अब जो आपने एग्जैक्टली ऑपोजिट किया वो जो इंफॉर्मेशन है और जो पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन उसको मैच कीजिए, उसके जैसी है तो आंसर दीजिए फॉल्स. इज इट गेटिंग क्लियर? ऑपोजिट करने के बाद. अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डू अ स्मॉल पैराग्राफ. चलिए, ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डू अ स्मॉल पैराग्राफ. काफी बच्चे लेट ज्वाइन हुए, मैंने अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी थी. मैं चाहूंगा सारे बच्चों को please try to come on time because there is always a valuable piece of information that I give at the beginning of the lecture. यहाँ पे भी मैंने दी थी, मैंने कहा था. So I recommend you people to attend the, I mean start the lecture at the at 8:30. हम लोग ज्यादातर टाइम 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा लेट नहीं करते. Okay, now this passage, इस प्राणी को देखा हुआ है? Have you seen this animal? Everybody? Koala bear, इसको देखा हुआ है? Have you seen this animal? Wonderful, very cute animal. You might have seen. I don't know whether you have seen or not. Okay.
ओके, ये पाया जाता है, इट्स बेसिकली अ मार्सुपियल एनिमल, इट्स बेसिकली अ मार्सुपियल एनिमल, और मैमल भी है और मार्सुपियल एनिमल है। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इट इज बेसिकली वेरी गुड कृष्णा। सो दिस इज बेसिकली नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपने शायद ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा कांगारूज भी होते हैं। तो कांगारूज जैसा ही ये एनिमल है, इसको हम बोलेंगे कोला बियर, क्योंकि हमारा जो पूरा पैसेज है वो उसके ऊपर है। ये फोटोग्राफ पैसेज में नहीं दिया था, बट आई जस्ट गिव यू दिस फोटोग्राफ, और आई एम गिविंग दिस फोटोग्राफ जस्ट टू आपको पता चले कि ये कोला बियर है क्या। शायद डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। ओके, नाउ ये मार्सुपियल एनिमल है। मार्सुपियल एनिमल मतलब वो एनिमल जिनके बाहर पेट के ऊपर पाउच होता है, जिसमें वो छोटे बच्चों को अपने रख सकते हैं। So it's basically, you must have seen kangaroo, having carrying its baby in the pouch, that nature has provided to it. वैसे ही कोला बियर भी मार्सुपियल है। उसके पेट के आगे छोटा सा पाउच होता है जिसमें उसके न्यूबॉर्न बेबीज को रखा जाता है। नाउ दिस इज द पैसेज दैट आई वांट यू पीपल टू गो थ्रू इट। पहले एक बार देख लो इसको। आई अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चंस आर टू बी रेड फर्स्ट, but I still want you just go to this passage. I'm going to give you 3 minutes for this. शांति से। I will explain each and every word that you might not understand. Don't worry. Okay. Yeah. Is it done, students? You are anyhow going to get extra time, while doing the question, reading the question. Is it done, students? Don't worry. You'll be getting the time. जो वर्ड आपको पता नहीं चल रहा है, मैं उसका, when I'll be solving the answers, I'll explain you. Don't worry. And I'm going to spend lots and lots of time. बहुत मजा आएगा आपको. Let's absolutely enjoy this session. I'm sure. Okay, great. I'm still not getting confirmation from majority of the students. Just want to know if they are done or not. Santi se, take your time. No issues. Clear? Very good. Don't worry, Yeah, don't worry, at all if you are not able to read each and everything, if you are not able to understand everything. But I'm sure, okay. Now, this is the entire passage about cola beer. आपको पता होगा. I am not going to explain, I'm not going to explain anything right now. Not an issue, Jinal. Don't worry. Okay. Okay, so even if this is the first lecture of anybody, there is nothing to worry. I'm going to explain anybody or anyone in such a way that सारी चीजें पता चल जाएगी. Don't worry. Okay, so ये आपका passage है. अब I'm going to throw the questions to you students, and you people are going to get me the answers. आप answers blast नहीं करेंगे.
There are 6 questions based. Remember, just don't start doing it. Remember one thing, that at the end of the session I'll explain each and every answer properly, and will explain you why this is the answer. But उसके पहले 1 2 3 4 5 6 करते मुझे इसका आंसर मत बताए, 6 के बाद मुझे आंसर बता सकते हैं आप. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आपको बोलना है ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 30 seconds पर क्वेश्चन. 30 seconds per question. The time starts now. Don't send me the answers right away. Question is exactly at the top. Can you see the students? Question दिख रहा है आपको? Everybody? Yeah, question is at the top. Is everyone able to see the question? Koalas are vegetarian. Yes. Yeah. Sanyam, it is exactly at the top. दिख रहा है संयम आपको? Okay. Great. Now. Yeah. So time is up, students. Time is up. Time is up. So let us go ahead with the second question. I hope you people have all done the got the answer. अपने नोटबुक में लिख दीजिए इसका आंसर. आपको 1 के सामने सिर्फ yes, no या फिर not given लिखना है. Nothing else is what you need to do. Understood? Is it done, everybody? Okay. Let us move on to the next question now. There are more koalas in the southern parts of Australia. This is question number 2. Your time starts now. Everybody should do it. Don't worry. Yeah, time is up, students. Time is up. Shall we move on to the next part? Next question, everybody. Shall we move on to the next question? It appears that people are still doing it, isn't it? हो गया? Okay. कोई बात नहीं, शांति से. Take your time, students, but let us do it properly. Okay, great. Okay, let's move on to the third question. I'm going to give 1.5 minutes. चलिए शांति से. Take your time.
Okay, time is up, students. So I'm only giving the time that you probably would be getting in the examination. Don't worry. Okay. Shall we move on to the next question, or you still need to buy time from me? Done? Everybody? You just need to give answers as yes, no, or not given. That's it. Nothing else. Clear? Okay. हो गया everybody? I'm still not getting answers in bulk. मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है बल्क में. इसका बल्क में आएगा तब पता चलता है कि सब लोगों ने कर दिया है. ओके, नो इश्यूज. आई एम नाउ गेट स्टार्टेड टू गेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. This is question number 4. Again, 1.5 minutes. Koalas are mainly awake at night. Yeah, just a minute. Okay, time is up. Okay, let's move on to the next question. Question number 5. थोड़ा सा ट्रिकी है. Let's see. Yeah, is it done, students? Okay, great. Okay, very last question. Koalas do not drink water normally.
चलिए, done students, sure everybody, yes or no? So there are lots and lots of words that I would like to explain today. बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स है, मैंने ये पैसेज इसीलिए भी लिया है कि आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू और गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्ड्स. नाउ कैन आई हैव द आंसर्स फ्रॉम यू पीपल? Yes, great students, can you write the answers, that you, I want everybody to at least give it a try, no matter how many days you attend the lecture. ये try करने में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का आंसर क्या है मुझे बताने का कष्ट करेंगे स्टूडेंट्स. एवरीबडी ट्राई कीजिए. ओके फाइन, आई हैव गॉट आंसर्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू. वेरी गुड, ट्राई कीजिए, नथिंग टू वरी. Nobody is going to shoot you, if you give me wrong answers. Don't worry. Clear? Okay, great. Okay, very good. I'm getting wonderful answers from you people. Now let me see, you need to be brutally honest to me when I shoot the answers to you. Now this is basically the first answer. Okay, most of you have given me the right. Yeah. Okay, दो तीन गलत भी है काफी लोगों के. Okay, so thank you so much students, you people are very responsive. I'm so happy for that. Let me now talk about the answers. Yeah, are you all done giving the answers to me? Can we go ahead now? Okay, now the first thing, along with this explanation, I'm also going to explain few things. First and the foremost thing, मैं आपको सबको ये कहना चाहूंगा. Yeah, the first thing that I would like to disclose right now is that yeah, thank you so much. Now let me explain first. पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इन IELTS रीडिंग देयर आर 14 to 15 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रेफरेबली 12 से 13 बहुत कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स इन द रियल एग्जामिनेशन. एंड यू शुड आल्सो नो दैट के कौन से क्वेश्चन में, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में आंसर सीक्वेंस में आते हैं और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आंसर्स आर नॉट इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर. सीक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब होता है कि आफ्टर फर्स्ट आंसर के बाद ही सेकंड का आंसर आता है और सेकंड के बाद ही थर्ड का आंसर आता है. So just out of curiosity, I'm asking you, do you know whether the answers of true, false, not given or yes, no, not given are going to come in sequential order or they are not going to come in sequence? Are the answers of yes, no, not given come in sequential order or not sequential order? Please, I just need to know, whether you know it or not. Okay. So काफी लोगों ने बहुत अच्छा दिया है. Very good. Most of the time, let me tell you students, most of the time answers of ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आर ऑलवेज गोइंग टू कम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही आएगा. एग्जैक्टली बहुत कम बार ऐसा होता है कि सीक्वेंस में नहीं आता. मैंने बहुत कम बार ऐसा देखा है कि कैम्ब्रिज में आंसर सीक्वेंस में नहीं है. If the paragraph is of reasonable size, the answers are more often than not going to come in sequential order. अब ये समझने के बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा कि when you talk about question number 1, when you talk about question number 1 and 2, they're always going to come down, for example in sequential order. तो जाहिर है कि अगर पहले का जो आंसर है is going to be coming down in the first paragraph itself. Now the first question, koalas are vegetarian. Now here your vocabulary is going to play a very important role. So it is given in 1 2 3 4. मैं पांचवी लाइन पढ़ रहा हूँ. They are tree dwelling. Tree dwelling का मतलब होता है कि जो पेड़ पे रहते हैं. Herbivorous marsupials, very nice word. Herbivorous का मतलब होता है plants, I mean animals that only feed on green grass or shrubs, जो सिर्फ और सिर्फ वनस्पति खाते हैं. अब लगी बात हर्बीवोरस की. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ दो और वर्ड देना चाहूंगा. हर्बीवोरस के साथ दूसरे भी दो वर्ड्स जुड़ते हैं, यहाँ पे नहीं है उनका काम. हर्बीवोरस के साथ आता है वर्ड दूसरा कार्निवोरस. You will be getting this type of words in your reading passages very often. Carnivorous का मतलब होता है animals which only feed on मीट और मांस खाते हैं. मांस खाओ जो आदमी जो प्राणी होते हैं उसको हम कार्निवोरस कहते हैं. सो हर्बीवोरस आर द एनिमल्स व्हिच फीड ऑन ग्रीन ग्रास और श्रब्स. कार्निवोरस आर दोस एनिमल्स व्हिच फीड ऑन मीट. जैसे कि लायन, टाइगर्स, उनको आप कितना भी घास दोगे तो वो नहीं खाएंगे, ज्यादातर नहीं खाते, 99% नहीं खाते. दे ओनली फीड ऑन मीट. और उसके साथ तीसरा वर्ड भी जुड़ता है जिसको हम कहेंगे ओमनीवोरस. I repeat, omnivorous. The spelling is OMNIVOUOROUS. Exactly. No, omnivorous अलग होता है. Omnivorous basically is an animal
जो इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। सो जो जरूरत पड़े तो आई मीन वो मांस भी खा सकता है और वो घास या मीन साग सब्जी भी खा सकता है, उसको हम कहेंगे ओमनीवोरस, इजंट इट? लाइक ह्यूमन बींग्स फॉर एग्जांपल, काफी ह्यूमंस ऐसे जो दोनों खाते हैं। So although we are only worried about our answer right now, the most important thing, there are three words that you have right now known. First is herbivorous, carnivorous and omnivorous. Okay, now coming back to this question, koalas are vegetarian. तो अगर ये वर्ड आपको पता नहीं है herbivorous, तो आप जाहिर है उसका आंसर नॉट गिवन दोगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि हर्बीवोरस का मतलब होता है ऐसा प्राणी जो घास खाता है। इट बेसिकली कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, हर्ब और वोरस। वोरस का मतलब खाना और हर्ब का मतलब होता है घास। सो इट बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, हर्ब वत्ता प्लस वोरस, so that is herbivorous. So answer of this is going to be true. Any question on this, dear students? Any question on this? This is going to be long thing. Any question now? Shall we go on to the next part? Yes. मैं पहले बताना चाहूंगा, आंसर्स आर ऑलवेज गोइंग टू कम डाउन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर में आएंगे, तो जाहिर है कि पहले के बाद ही दूसरा आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ दैट सेकंड इज गोइंग टू कम डाउन आफ्टर फर्स्ट। लेट अस सी। ओके, सेकंड ये है, देयर आर मोर कोअलास इन द सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इन द सेकंड पैराग्राफ, आई मीन फर्स्ट पैराग्राफ, कोअलास इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कंसिडरेबली लार्जर, वो ज्यादा बड़े होते हैं, एंड हैव थिकर फर देन दोज इन द नॉर्थ। बट नोवेयर इट हैज बीन मेंशन, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि सदर्न पार्ट्स में कोअलास की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है, उसका जिक्र कहीं नहीं है, किसी भी पैराग्राफ में नहीं है, and hence the answer of this is going to be not given. Is it getting clear, everybody? Yes or no? Understood? If you want me to explain again, I can do that, but I am going very slow so that all and each and every one of you can understand what I am trying to say. अगर आपके आंसर्स गलत है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Let us move on to the third question now. Koalas may have 1 to 3 babies during their lifetime. Now you might be tempted by this 1 and 3 years old. लेकिन ये तो उसका जो मतलब उसका बेबी है, जो मतलब उसका बेबी, इट्स मदर होम रेंज फ्रॉम 1 to 3 years डिपेंडिंग ऑन द, मतलब वो अपने माँ की पाउच में 1 से 3 साल तक रहता है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है कि कोअलास मे हैव 1 to 3 बेबीज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, एंड हेंस द आंसर ऑफ दिस इज आल्सो गोइंग टू बी नॉट गिवन. I repeat, the answer of first was basically true. दूसरा और तीसरा दोनों not given है. I don't know how many of you got the correct answers. Clear? Okay. Now let us move on to the fourth one. Koalas are mainly awake at night. यहाँ पे भी एक छोटा सा आपको फॉर एग्जाम्पल वो कैप की जरूरत पड़ेगी. आपने देखा होगा पहले का आंसर यहाँ पे कुछ था इन द फर्स्ट पैरा, सेकंड का एट द एंड ऑफ द सेकंड, आई मीन फर्स्ट पैरा, और ये जो है यहाँ पे है, इट्स बेसिकली कमिंग फ्रॉम द वर्ड नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल का मतलब होता है निशाचारी. निशाचारी मतलब जो रात को ही होता है, रात को वो अपना काम करता है. जैसे कि कैन यू गिव मी एनी अदर एग्जांपल ऑफ नॉक्टर्नल एनिमल्स, स्टूडेंट्स? Can you give me example of any other nocturnal animals that you know of? Owl. Owl is a nocturnal animal, isn't it? There's also one bats. Bats are also nocturnal animals. ये आपको याद रखना. देखिए, आपने सिर्फ ये नहीं देखना है कि इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, आपने आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप करनी है. सो इट्स बेसिकली नॉक्टर्नल, और वही रहता है नॉक्टर्नल मतलब वो ज्यादातर they remain awake at night. So the answer of fourth is going to be true. Is it getting clear? Any questions on that, students? Okay, great. Any questions on this? Okay, great. Let us go on to the fifth one now. Let us go on to the fifth one now. Koalas get drunk from gum leaves. Now यहाँ पे भी एक छोटा सा vocab का आपका काम चलता है. Now here many of you might have given correct incorrect answer, I don't know. Koalas get drunk from gum leaves. So, अब ये get drunk है ना, it's basically a collocation. मैं ये बताना चाहूंगा get drunk मतलब पानी पीना नहीं. Get drunk is basically a collocation. Collocation मतलब दो वर्ड मिला के उसका मतलब ही चेंज हो जाता है कभी कभार. Get drunk का मतलब क्या होता है? Can you tell me what is the meaning of get drunk? What is the meaning of get drunk? इट्स ड्रिंक का मतलब क्या होता है? ड्रिंक का मतलब उसका पास्ट पार्टिसिपल है ड्रंक, बट जब गेट ड्रंक की बात आती है तो उसका पूरा मतलब चला जाता है. गेट ड्रंक का मतलब होता है नशा चढ़ जाना. आई रिपीट, गेटिंग अल्कोहलिक. वेरी गुड. Many people have given me the right answer. Get drunk becomes a collocation word.
इसका मतलब होता है नशा चढ़ जाना, इट बेसिकली का मतलब होता है नशा। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर इज अ मिथ, आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस, देयर इज अ मिथ। मिथ का मतलब होता है, मिथ का मतलब वो ऐसी मान्यता जो गलत है। सो मिथ इज बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ बिलीफ। बिलीफ का मतलब ये सही बात है, इट्स बेसिकली अ ट्रू थिंग। लेकिन मिथ जो होता है वो गलत बिलीफ है। सो देयर इज अ मिथ दैट कोअला स्लीप अ लॉट बिकॉज दे गेट ड्रंक ऑन गम लीव्स। ये एक ऐसी गलत मान्यता है कि उनको नशा चढ़ जाता है गम लीव्स पीने से, गम लीव्स खाने से, और उस नशे के कारण वो पूरे दिन सोते रहते हैं। बट दैट इज बेसिकली अ मिथ, वो गलत चीज है। एक्चुअली उनका सोने का कारण दूसरा है, यहाँ पे लिखा है इन द लास्ट लाइन। यू शुड ऑल्सो लुक एट दैट लाइन एज वेल। However, most of that time is spent sleeping because it requires a lot of energy to digest that toxic, fibrous, low nutrition diet, and sleeping is the best way to conserve energy. क्योंकि उसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, उसका जो खाना होता है उसको हजम करने के लिए, और वो एनर्जी सोने से वो कंज्यूम करता है, उसको कंजर्व करता है, बचाता है। तो ये गलत है कि वो गम लीव्स, मतलब कि यूकेलिप्टस के, गम का मतलब देखो यहाँ पे लिया है गम, यूकेलिप्टस के लीव्स, नीलगिरी के लीव्स खाने से उसको नशा चढ़ जाता है। वो मान्यता जो है वो गलत है। और यहाँ पे लिखा है कोअलास गेट ड्रंक फ्रॉम गम लीव्स, ये तो मान्यता वो गलत है। सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स, इट्स अ मिथ। Clear or not, everybody? I am trying my level best to explain you in the best possible manner. Understood? So यहाँ पे important चीज है get drunk. Get drunk का मतलब होता है नशा चढ़ जाना. Understood? Okay, great. Okay, finally the last one. Koalas do not drink water normally. वो ज्यादातर normally पानी नहीं पीते. If you look at the last paragraph, अगर last paragraph देखोगे, the koala gets its name, नाम ही उसका इसलिए पड़ा है from an ancient aboriginal meaning no drink. वो पानी पीता ही नहीं है, because it receives over 90% of its hydration. Hydration का मतलब वापस पानी. It comes from the water word hydrogen, hydration from the eucalyptus leaves. जब ये यूकेलिप्टस लीव्स खाता है उसमें से 90% उसको पानी मिल जाता है। तो जब उसको पानी तभी वो पीता है कि जब अकाल पड़ा है, या तो फिर उसको पानी में यूकेलिप्टस लीव्स नहीं मिलते, तभी जाके वो पानी पीता है। लेकिन वो बहुत कम बार होता है, ज्यादा से ज्यादा बार वो अपना पानी का जो कंजम्पशन है, इट बेसिकली कंप्लीट्स दैट फ्रॉम ईटिंग यूकेलिप्टस लीव्स। तो इसका मतलब इसका आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू। यहाँ पे दो चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे भी नॉर्मली लिखा है, नॉर्मली इज बेसिकली अ क्वालिफाइंग थिंग, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं कहा है कि डू नॉट ड्रिंक वाटर, नॉर्मली पानी नहीं पीता। और यहाँ पे भी ऐसा लिखा है, देखो, इट डज नॉट, यहाँ पे लिखा है इट ओनली ड्रिंक्स व्हेन इल और टाइम्स व्हेन देयर इज नॉट इनफ मॉइस्चर इन द लीव्स। यहाँ पे भी ऐसा नहीं, इट्स नॉट ए 100% स्टेटमेंट, और ये भी 100% स्टेटमेंट नहीं है। दोनों का मतलब एक है। स्टेटमेंट कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कोलास डू नॉट ड्रिंक वाटर एट ऑल, तब ऐसा है तब आंसर उसका फॉल्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब बहुत कम बार नॉर्मली वो पानी नहीं पीता। और यहाँ पे भी ऐसा लिखा है वो पानी तभी पीता है जब ये प्रॉब्लम होती है। देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू। नाउ आई नीड टू नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल द आंसर्स करेक्ट। मैं ये जानना चाहूंगा सारे कितने ऑनेस्टली बताइए, कितने लोगों का आंसर 6 आउट ऑफ 6 किसका पड़ा है। देखिए, लेट बी वेरी ऑनेस्ट टू मी। ओके, कितने, 1 2 3 4, अच्छा सिर्फ 4 लोगों का सबके सब सही पड़े हैं। नहीं नहीं, रॉन्ग तो है, मैं देख रहा हूँ काफी लोगों के। या आई हैड श्रेयस हैज आल्सो गॉट वन रॉन्ग। सो ओनली 3 to 4 students have got all right. So that goes on to say that true, false and not given is not the easiest of all. Okay, any questions, any doubts, my dear students? Yes or no? Perfect, very good. This is going to be a long session once again. Okay, this is going to be again a very long session, so I want you people to stay remain glued to me. दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वेरी वेरी, या बहुत मजा आएगा। आप हम लोग मिलते हैं, तो चलिए। सुषमा, आई हैव गॉन टू द न्यू स्लाइड, कैन आई एक्सप्लेन यू दैट टुमारो? इज इट कंफर्टेबल सुषमा? 5वां वापस समझाने जाऊंगा तो गलत टाइम लग जाएगा, चलेगा? ओके, नो इश्यूज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर ये क्या है, आई वांट टू इंप्रूव, दिस इज अ सेशन, ये आपने कहीं पे भी इसका नहीं जिक्र किया होगा, नहीं सुना होगा। सो आई एम गोइंग टू टेक एडवर्बियल्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, और उसके सबसे लास्ट में आई एम गोइंग टू टेक एन एसे। सो इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग सेशन वंस अगेन। आई डोंट वांट एनीवन टू लीव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। नाउ एडवर्बियल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन क्या है सर, ये क्या है? ओके,
नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आपने देखा होगा इन दिस ट्यूटोरियल यू लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वर्जन एडवर्ब. अगर आपने एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो उससे क्या फायदा है. नाउ मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स आस्क मी सर आई एम नॉट एबल टू स्कोर हाई ऑन स्पीकिंग. मैं बार बार एग्जाम देती हूँ, मेरे 6 6.5 बैंड ही आते हैं. आई एम नॉट एबल टू इम्प्रूव ऑन माई स्पीकिंग स्कोर्स. नाउ यू मस्ट बी नोइंग दैट एक पैरामीटर जो राइटिंग जो स्पीकिंग में है वो है grammatical range and accuracy, which is also a parameter in writing में भी ये parameter आता है. When I talk about grammatical range, it is not only about writing simple, compound and complex sentences. It is about writing each and every type of sentences, speaking each and every type of sentences. तो मैं आपकी sentences में विविधता कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में ये छोटा सा सेशन है. And I'm sure each and every one of you are going to is going to enjoy this session. Inversion क्या है. Now this will help you in your IELTS speaking examination because you will develop a range of complex structures to use when you are answering the questions in parts 1, 2 and 3. Speaking में ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके sentences की विविधता बढ़ेगी and definitely this will help you to score higher on your speaking examination. For example, होता क्या है. Another structure which will make a significant impact on your IELTS speaking score is the use of inversions. We do this in questions, but we can also do this when we want to show surprise or to show something that is striking और unusual. हम किसी चीज पे भार देना चाहते हैं तो उसके लिए हम inversion या तो adverbs at the beginning of the sentence का इस्तेमाल करते हैं. Now I just need to know from you, how can you write this sentence in a separate manner? Can you tell me? आई हैव नेवर बीन सो टायर्ड. इसका इस्तेमाल करके मुझे बताए, इसको अलग तरीके से अगर मुझे कहना है तो मैं कैसे कहूंगा, बताने का कष्ट कीजिए. आई हैव नेवर बीन सो टायर्ड. आई वांट यू जस्ट टू जंबल दिस वर्ड्स. इसको जंबल करना है, आपने नया वर्ड ऐड नहीं करना है. आई डोंट वांट यू टू रीड ऐड एनी न्यू वर्ड. आई जस्ट वांट टू रीसफल दिस स्टेटमेंट इन अ वे टू सो एज टू मेक इट मोर इफेक्टिव. नो, सिर्फ सिर्फ श्रेयस हैज गिवन मी द राइट आंसर. ओके, इसका मतलब युवा काफी लोगों को पता नहीं. आई थॉट दैट मेनी. नो 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 खुशबू, आई डोंट वांट टू चेंज एनी वर्ड. मैं मेरी बात सुनो पहले. मेरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं इसमें से एक भी वर्ड ना निकालना चाहूंगा ना एक भी वर्ड ऐड करना चाहूंगा, फिर भी मैं उसको अलग करना चाहूंगा. अरे आपका आंसर्स देख के पता चल रहा है कि मैं सोच रहा था सर ये टॉपिक लू के ना लू, बट नाउ आई एम बिलीव दैट आई हैव टेकन दिस टॉपिक एंड इट इज गुड. ओके, लेट मी सी नाउ. अब मैं इसको चेंज करता हूं. सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज दिस सेंटेंस. सी नाउ, सी, कैन यू सी स्टूडेंट्स नाउ? कैन यू सी नाउ व्हाट आई हैव डन? विराज आपने ट्राई किया लेकिन ग्रामर अलग हो जाता है, आपने ये देखना है. नो नो नो, सी हाउ आई हैव रिटन. नेवर हैव आई बीन सो टायर्ड. नाउ कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? दोनों एक ही है, फिर भी दोनों में फर्क क्या है? कोई बताना चाहेगा मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड वन? एवरीबॉडी वाइल्ड गेस कीजिए. नहीं नहीं नहीं, वॉइस भी एक ही है. देयर इज नो डिफरेंस इन द ग्रामेटिकल पार्ट. जो टेंस है वो भी सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है. मुझे बताने का कष्ट करेंगे पहले और दूसरे में फर्क क्या है. बट व्हाई वुड आई यूटिलाइज द सेकंड सेंटेंस व्हेन आई कुड इजीली. अब मैं बताना चाहूंगा, अब देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसको हिंदी में अनुवादन करके आपको बताता हूं इसका फर्क क्या है. ध्यान से सुनिए. आई हैव नेवर बीन सो टायर्ड, मैं उसका हिंदी में अनुवादन करता हूं. मैं कभी इतना थका नहीं हूं. आई रिपीट, मैं कभी इतना थका नहीं हूं. ट्राई टू accept my Hindis, my dear students. Try to accept my Hindis. Okay. Now, अब मैं इसको दूसरा सेंटेंस बोलूं. कभी भी मैं इतना थका नहीं हूं. पहला सेंटेंस, मैं इतना कभी थका नहीं हूं. दूसरा सेंटेंस, कभी भी मैं इतना थका नहीं हूं. दोनों में फर्क क्या है बताइए. प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब भैया मैंने तो हिंदी में अनुवादन करके कहा. नाउ यू शुड बी एबल टू टेल दिस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट सेंटेंस स्पोकन बाय मी एंड द सेकंड सेंटेंस बीइंग स्पोकन बाय मी? दूसरे सेंटेंस में एम्फेसिस आ जाता है. मैं एम्फेसिस करना चाहता हूं कि मैं कभी भी इतना थका नहीं हूं, उसका मैं एम्फेसिस करता हूं.
So basically when I am writing the second sentence, I am emphasizing that. और ये करने से आपके स्पीकिंग में बैंड्स बढ़ने की संभावना है, बिकॉज बहुत कम लोग, इतना इजी है उसके बावजूद इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो आपने कुछ नहीं करना है. ये ऐसे वर्ड्स है सर, ये कौन से वर्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं? लेट अस सी. The second sentence is the inversion and emphasizes how tired the person was. दूसरा सेंटेंस वो कितना थका हुआ है उस पे ज्यादा भार देता है. Is it getting clear? It has a much more stronger effect than the first sentence. I repeat, it has a much stronger effect than the first sentence. We mostly use inversion with negative adverbs and adverbial phrases such as never. ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. Never, hardly, rarely, seldom, only then, it wasn't until, nowhere, in no way, on no account, no sooner than. जब ऐसे वर्ड्स, ऐसा नहीं कि इतने ही वर्ड्स है, but these are few of the words in which you can utilize them at the beginning of the sentence just to give more emphasis. ज्यादा एम्फेसिस देने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ज्यादातर ये होता है, ये जो वर्ड्स होते हैं वो आते हैं प्लस ऑक्सिलरी, मतलब विल, वुड, हैज, हैव, ये ऑक्सिलरी है. उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब. अब आप देखना चाहेंगे फर्क ये पड़ता है, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आता है एंड देन द वर्ब कम्स. यहाँ पे वर्ब पहले आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है. छोटा सा फर्क ये है. थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा मजा आएगा. With inverted sentences, we put the adverb at the beginning of the sentence. जो मैंने वर्ड्स बताए, hardly, seldom, rarely, उसको अपने बिगिनिंग में स्टार्ट करना है. उससे क्या होगा स्पीकिंग में? आपको पता है स्पीकिंग में एक पैरामीटर है प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन में एक, और मैं ज्यादातर उसमें जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा, इन प्रोनाउंसिएशन एक छोटा सा उन्होंने दिया हुआ है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. स्ट्रेस और इंटोनेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो आप स्ट्रेस दे पाओगे वर्ड्स पे. अगर आप इंग्लिश अभी अभी सीखी और आपकी 5.5 बैंड की लेवल वाली इंग्लिश है तो आप स्ट्रेस नहीं करते. जैसे कि अगर मातृभाषा में अगर कोई चीज पे एम्फेसाइज करना है तो बिल्कुल आसानी से हम कर पाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू यूटिलाइजिंग इंग्लिश, वी नेवर गिव स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. तो ये वर्ड ऐसे है जिसमें आप स्ट्रेस दे पाओगे. जैसे कि शी इज रेयरली सो रूड. शी इज रेयरली सो रूड मतलब शायद रूड मतलब वो, मतलब शी इज बेसिकली नॉट पोलाइट. दैट्स द ऑपोजिट ऑफ रूड. तो वो शी इज रेयरली रूड, बहुत, वो बहुत कम बार इतनी रूड होती है. ठीक है. अब इसका इन्वर्जन कीजिए. आई वॉन्ट यू पीपल टू यूटिलाइज इन्वर्जन. शी इज रेयरली सो रूड. चलिए मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी हैव गिवन इट टू यू. टेल मी हाउ टू डू दिस. चलिए यूज कीजिए. स्टार्ट कैसे करेंगे? हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट? रेयरली से स्टार्ट करेंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीबडी? यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद रेयरली. रेयरली से स्टार्ट कीजिए, बाद में वर्ब आएगा, शी नहीं आएगा. रिम्पी, इट इज नॉट गोइंग टू. रेयरली इज शी सो रूड. बाकी कुछ चेंज नहीं करना है. यू आर जस्ट गोइंग टू चेंज द इंटोनेशन. देखिए ये क्या आएगा आंसर इसका? रेयरली इज शी सो रूड. देखिए दूसरा सेंटेंस आपको 7 बैंड्स दिलाएगा, पहला सेंटेंस आपको 6 बैंड्स दिलाएगा. सिर्फ आपने उसका चेंज कर दिया. इट बेसिकली इज गिविंग यू अ ग्रेट आंसर. उससे बहुत अच्छे बैंड्स मिलने की संभावना है. तो कैसे? देखिए पहला सेंटेंस मैं ऐसे बोलूंगा, वो बहुत कम बार रूड होती है. बहुत कम बार वो रूड होती है, तो मैं उस पे एम्फेसिस देता हूं. इज इट गेटिंग एवरीबडी? यस और नो? पता चल रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं ट्राई कर रहा हूं ताकि आप सब लोगों को मजा आए. क्लियर? ओके, वेरी गुड. ओके, लेट मी गिव यू वन मोर सेंटेंस. Notice that the first sentence is the way that people speak most of the time. पहला sentence ऐसा है जो ज्यादातर लोग बोलते हैं. However, the second sentence is inverted because it begins with an adverbial phrase and we change the place of the subject and the verb. वही sentence देखिए, लेकिन उसको मैंने change कर दिया. Okay, now कैसे करेंगे? दूसरा example, you are to go there on no account. यू आर टू गो देयर ऑन नो अकाउंट. पहले तो मैं ये समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है. आप वहां पे किसी भी हिसाब से नहीं जाओगे. आप वहां पे किसी भी हिसाब से नहीं जाओगे. तो आप ऑन नो अकाउंट का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाए. ऑन नो अकाउंट यू आर गोइंग टू यूटिलाइज फर्स्ट. प्लीज स्टार्ट डूइंग इट. ऑन नो अकाउंट यू आर गोइंग टू यूटिलाइज फर्स्ट. चलिए चलिए, चलो ट्राई करो. अब इससे ज्यादा मैं नहीं सिखा पाऊंगा. पहले क्या करेंगे? ऑन नो अकाउंट,
बाद में क्या करेंगे, वर्ब आर, ऑन नो अकाउंट आर यू टू गो देयर, इसमें से एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। ऑन नो अकाउंट आर यू टू गो देयर, अंडरस्टूड एवरीबडी? पता चल रहा है सबको? वाह वाह, बहुत मजा आ गया, सब लोगों ने अच्छे अच्छे आंसर्स दिए, आई एम सो हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। ओके ग्रेट, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑन नो अकाउंट आर यू टू गो देयर। इज इट गेटिंग क्लियर? नॉट एन इश्यू। आपको पता तो चले कि ये कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल, आई हैव नेवर टेस्टेड सच गुड फूड, मैंने कभी इतना सुंदर फूड मिस नहीं किया है। चलिए स्टार्ट कैसे करेंगे? हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट? नेवर से स्टार्ट करेंगे, प्लीज स्टार्ट द वर्ड विद नेवर। ट्राई करो। आई हैव नहीं रुचि, यू शुड नॉट बी यूटिलाइजिंग नेवर आई हैव, तो गलत हो जाएगा, बाद में ऑक्सिलरी आएगी। Very good students. You people are giving fantastic answers. I am so very happy. Never have I tasted such good food. पता चला everybody? Very good. Most of you are writing the right answers. Clear? Very good. Okay, चलिए चलिए इसको दिखाइए, ट्राई कीजिए इसको। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, लेट अस सी हाउ यू डू इट। इसमें डस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टार्ट करना है हार्डली से, स्टार्ट करना है हार्डली से, इसमें डज आएगा, ट्राई करो। जॉन हार्डली रिमेंबर्स दैट द एक्सीडेंट दैट टुक हिज सिस्टर्स लाइफ, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा एडवांस है, लेट अस सी। चलो 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 ट्राई करो। वेरी गुड, चलो चलो ट्राई करो। डज का इस्तेमाल स्टार्ट करोगे हार्डली से, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद हार्डली। हितेश आपने लिखा तो सही, लेकिन डस जब आता है तो पीछे रिमेंबर्स में से एस निकल जाता है। अरे आप लोग रिमेंबर्स में, रिमेंबर्स नहीं आएगा, बाद में रिमेंबर ही रहेगा, then remembers is going to change to remember. Clear? Try कीजिए, nothing to worry. Okay, the answer of this is going to be something like this. We are running out of time, so I'm just going to get the things done. Hardly does John remember the accident that took his sister's life. Understood? देखो थोड़ा सा फर्क है, does आ जाता है और पीछे remembers के बदले remember आ जाएगा। Clear? Very good. Okay. Now one more example. चलो try करो। So many people have never been unemployed as today. बहुत मजा आएगा। चलो चलो ट्राई करो। कहां से स्टार्ट करना है? नेवर से स्टार्ट करना है आपको, यू नीड टू स्टार्ट विद नेवर। रीसफल ही करना है आपको, यू जस्ट नीड टू रीसफल, लेकिन पूरा 7 बेंड्स का मिल जाता है आपको सेंटेंस। चलो चलो ट्राई करो। व्हाट इज द आंसर? आगम थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा रॉन्ग है। ओके 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 ओके, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग। ओके, इसका आंसर है, द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी, चलिए आंसर देखते हैं इसका। नेवर हैव सो मैनी पीपल बीन अनएम्प्लॉयड एज टुडे। यहाँ पे काफी बच्चों ने बीन पहले लगा दिया था, मैंने नेवर हैव बीन कर दिया था, ऐसा नहीं होगा, ऑक्सिलरी आएगा उसके बाद सो मैनी पीपल बीन अनएम्प्लॉयड एज टुडे। अंडरस्टूड? नेवर हैव सो मैनी पीपल बीन अनएम्प्लॉयड हैज टुडे, बीन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रीचा प्लीज टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? थोड़े से और एग्जांपल करते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ये 7 बैंड वाला है। ओके लास्ट वन, चलिए एग्जांपल 2, ही हैड हार्डली फॉलन, सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर आ गया, ही हैड हार्डली फॉलन asleep when he began to dream। चलिए फटाफट, चलो 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 फटाफट, हार्डली से स्टार्ट करो, स्टार्ट द सेंटेंस विद हार्डली। हार्डली के बाद ऑक्सिलरी, बाद में वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, हार्डली के बाद ऑक्सिलरी, बाद में वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, बाद में वर्ब। चलो चलो तो फटाफट ट्राई कीजिए। वेरी गुड, नाउ श्रेयस इज परफेक्ट, वेरी गुड रुतांत।
वो बहुत अच्छा, अब आप सीख गए हो. I am very very happy that you people have learned. You have started to learn. Very good. हाँ, very good, very good, very good. You people are all doing fantastic job. You people are all doing very good. Okay. तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे? Hardly had he fallen asleep. Hardly had he fallen asleep when he began to dream. Very good. ठीक है, बहुत अच्छा है. ये आप बिलीव नहीं करोगे, ये स्पीकिंग में आपको जस्ट सोचो कितनी विविधता देगा. जस्ट चलिए लास्ट करते हैं. टाइम इज रनिंग आउट. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग वेरी वेरी हाई. चलिए जल्दी से. वी हैव रेयरली सीन सच एन इफेक्टिव एक्टर. कहाँ से स्टार्ट करोगे? अब मैं बताऊंगा नहीं कैसे स्टार्ट करना है, खुद करो. चलो चलो चलो, खुद करो. ट्राई डूइंग इट. यस यस, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट. ट्राई करो. वेरी गुड वेरी गुड. अब सबके दिमाग में बिल्कुल घुस रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ. वेरी नाइस. क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? Rarely have we seen such an effective actor. Understood now, students? पता चल रहा है? Have we seen such an effective actor? यही करने से देखो कितना आप स्टार्ट एम्फेसिस दोगे. और याद रखना है ये स्पीकिंग का है. आई वुड अगेन लाइक टू एम्फेसाइज दैट. वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर्स. मैं वापस दोहराना चाहूंगा, ये स्पीकिंग के वर्ड्स है. इसको आप जब बोलते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एम्फेसाइज. बोलने के वक्त भी आपको रेयरली हैव वी सीन सच एन इफेक्टिव एक्टर. आप ऐसा नहीं बोलोगे रेयरली हैव वी सीन सच एन इफेक्टिव एक्टर, ऐसा नहीं बोलोगे. बीमारी से उठे हो ऐसा नहीं बोलोगे आप क्या बोलोगे? रेयरली हैव वी सीन सच एन इफेक्टिव एक्टर. ऐसा बोलने से स्ट्रेस और इंटोनेशन में आपको बैंड्स मिलेंगे, प्रोनाउंसिएशन के बैंड ज्यादा मिलने की संभावना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? पता चल रहा है? ओके. लास्ट एग्जांपल, क्लास सेल्डम. चलो ये नहीं करना, ये एग्जांपल लेते. चलिए. विल बी एबल टू अकम्प्लिश दिस ग्रेट टास्क ओनली बाय हार्ड वर्क. चलो लास्ट एग्जांपल, इसके बाद नहीं करेंगे तो दिमाग में घुस जाएगा आपके. चलो चलो ट्राई करो. Yeah, you can utilize in writing as well, Miral. Very good, hard Hitesh. Very good. Very good. Very good. Very nice. क्या बात है, सबके सही आंसर्स हैं. ओनली नो नो नो, प्रीति 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 प्रीति. ओनली बाय हार्डवर्क तो रखना ही है आपको. देखो देखो देखो. Very good, very good, very good. So this is how the answers. Yeah. Nice, 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 students. I'm so happy. So this is how the answers are going to be. Only by hard work will we be able to accomplish this. Hard work बोलना कैसे है? Only by hard work. कभी भी अगर स्पीकिंग में टॉपिक आ जाता है तो you can emphasize by starting. What do you think? जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि what do you think will make people to be successful. Only by hard work will we be able to accomplish this great task. तो उससे क्या हो जाएगा? Emphasis हो जाएगा. Is it getting clear, everybody? Okay, great. You can utilize this in writing as well. Let me tell you, this is not the phrase that you can utilize in speaking, but you can always utilize this in writing. इससे बड़ा emphasis मिलेगा. Understood? Okay. अब energy बची आपके पास. I am very happy that most of you were there. Energy बची. Do you want me to take this type of sentence structures? Did you enjoy first of all, everybody? मजा आया कि नहीं आया? सीखा ना कुछ? हाँ मोहित. या ओके, ग्रेट स्टूडेंट्स, ग्रेट. तो उसको इस्तेमाल करना है आपको. यू शुड यूटिलाइज दिस इन योर डे टू डे लाइफ. आप डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हो. याद रखना है कि इसी चीज का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे फायदा होगा अपने डे टू डे लाइफ में भी. एक आम आदमी अगर इंग्लिश इस्तेमाल करता है और आप इस्तेमाल करोगे
उसमें फर्क पड़ जाएगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Okay, now if you people are there, I can go ahead with the next one. Are you there, everybody? You want me to continue, or you can tell me what we want to do? It's almost 9:40 हुए हैं. आप बोलो वैसा करते हैं. Okay, okay. So let me continue then. Okay, this is going to be great. Okay, let me continue then. Okay, so let me share a new slide with you. Okay, this is very important. ओके, नाउ ये जो है आई एम गोइंग टू शेयर दिस, ये काफी बच्चे ऐसे हैं जो जिनको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं था, सो आई थॉट ऑफ गिविंग अ क्लैरिटी टू यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले कभी नहीं सिखाया है, तो मैं चाहूंगा इसको आप गौर से देखिए. एग्री और डिसएग्री के बहुत टॉपिक्स आते हैं आईएलटीएस के एग्जामिनेशंस में. देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स दैट कम ऑन एग्री डिसएग्री. और आपको पता होगा कि दिस इज हाउ द एसे इज गोइंग टू बी, आई मीन दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एसेज. आपको पता होगा दे आर नॉट ओनली कॉमन इन आईएलटीएस, दे आर कॉमन इन टॉफल, पीटी, कहीं पे भी आप एग्जाम ले लो, एग्री डिसएग्री के टॉपिक बहुत आते हैं. Let me share an example with you. In some countries, an increasing number of people are suffering from health problems as a result of eating too much fast food. It is therefore necessary for governments to impose a higher tax on this kind of food. To what extent do you agree or disagree? काफी कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब हेल्थ प्रॉब्लम्स की दुविधा होती है, क्योंकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं. गवर्नमेंट को इसलिए ऐसे फूड पे हाई टैक्स लगाना चाहिए. जैसे कि बर्गर है, पिज्जा है, उस पर हाई टैक्स लगा दो. जैसे कि सिगरेट पे होता है, देयर इज अ वेरी हाई टैक्स. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? और मैंने ये भी बताया था आपको कि ऐसे केस पे आप इस चीज को, अगर एग्री डिसएग्री वाला टॉपिक है, उसमें आप 4 चीजें कर सकते हो. यू कैन डू 4 थिंग्स, आई मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू 4 थिंग्स. यू कैन कंप्लीटली एग्री, you can completely disagree, you can mostly agree, and you can mostly disagree. I repeat, you can completely agree, completely disagree, mostly agree और mostly disagree. अगर आप completely agree करते हो तो ज्यादा से, या disagree करते हो तो 4 पैराग्राफ्स, और अगर mostly agree करते हो या mostly disagree करते हो तो 4 से 5 पैराग्राफ लिख सकते हो. जरूरी नहीं कि 5 ही लिखने हैं, 4 पैराग्राफ भी लिख सकते हो. अब इसका फॉर्मेट समथिंग इज गोइंग टू बी लाइक दिस. अच्छा, उसके पहले एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि काफी इंस्टीट्यूट आपको सिखाती है कि पार्सली एग्री कीजिए. प्लीज डोंट डू दैट. इफ यू गो फॉर पार्सली एग्री, इट विल बी अ वेरी वेवर्ड ऐसे. प्लीज डोंट यूटिलाइज द वर्ड आई पार्सली एग्री विद दिस ऐसे. सो या तो फिर आप कंप्लीटली एग्री कीजिए, कंप्लीटली डिसएग्री कीजिए. यू कैन मोस्टली एग्री और मोस्टली डिसएग्री, प्लस प्लीज डोंट पार्सली एग्री. ये बहुत गलत है. अब कौन से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हो, इसको गौर कीजिए. मैंने पहले बताया था, लेकिन ये छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस स्ट्रक्चर राइट नाउ. ये स्ट्रक्चर है. आप इंट्रोडक्शन लिखिए. सो इफ यू आर मोस्टली एग्री करते हो या फिर मोस्टली डिसएग्री करते हो, देन यू कैन यूटिलाइज इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, बॉडी पैराग्राफ 3 एंड कंक्लूजन. नाउ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन होगा और कंक्लूजन होगा. जब आप मोस्टली एग्री करते हो तो जाहिर है आप किसी टॉपिक पे 70-80% एग्री करते हो. नाउ इट कैन नॉट बी मैप्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आप कोई चीज को मोस्टली एग्री या मोस्टली डिसएग्री करते हो तो इसका मतलब ये हुआ दैट यू आर एग्रीइंग ऑन दैट टू ऑलमोस्ट 75-80%, और 25% शायद उससे सहमत नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, सहमत मतलब ऑपोजिट साइड हो. तो ऐसे केस में फॉर्मेट दैट यू कैन यूटिलाइज इज इंट्रोडक्शन. जिससे आप सहमत हो उसके लिए 2 पैराग्राफ या तो फिर बड़ा पैराग्राफ. इधर यू कैन गो फॉर 2 पैराग्राफ्स और यू कैन राइट 1 बिगर पैराग्राफ, एंड देन यू कैन गो फॉर द अदर साइड. मतलब जिससे आप सहमत नहीं हो, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि यू आर नॉट एग्रीइंग टू ऑलमोस्ट 20-25%, तो उसका भी तो कुछ लिखना पड़ेगा. तो वो यहाँ पे होगा इन द थर्ड पैराग्राफ, आई मीन बॉडी पैराग्राफ 3, एंड फाइनली कंक्लूजन. तो फॉर्मेट दैट आई यूजुअली फॉलो इज दिस. मैं ये फॉर्मेट को फॉलो करता हूँ. इसको आप गौर से देखिए, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. मैं हर वक्त बच्चों को बताता हूं कि व्हेन यू मोस्टली एग्री या मोस्टली डिसएग्री, जो चीज से आप एग्री नहीं, जैसे कि मोस्टली एग्री हो तो 25% आप किसी चीज से डिसएग्री हो, उससे आपको स्टार्ट करना है. लेट अस नॉट गेट आवरसेल्फ कंफ्यूज्ड. जो पहला जो था, लेट मी रिविजिट द प्रीवियस स्लाइड. इसमें मैंने ऐसा किया था, इंट्रोडक्शन, जिससे मैं सहमत हूं उसके 2 पैराग्राफ, जिससे मैं सहमत नहीं हूं उससे तीसरा पैराग्राफ, एंड फाइनली कंक्लूजन. यही फॉर्मेट है. इसको मैंने चेंज ऐसे किया है कि आई एम राइटिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट,
बट जिससे मैं सहमत नहीं हूं वो मैं बॉडी पैराग्राफ 1 से करता हूं, then body paragraph 2, body paragraph 3 and conclusion. Please let me know if you are not able to understand. Just a minute. Are you able to understand what I am trying to say, students? Please इसको गौर से देखिए. Please listen, check it out properly. इससे देखिए, शांति से देखिए. शांति से देखो मैं क्या कहना चाहता हूं. वापस दोहराना चाहूंगा. अगर कोई टॉपिक है उससे आप मोस्टली एग्री या मोस्टली डिसएग्री करते हो, यू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन एंड इन द सेकंड पैराग्राफ आप वो 25% चीज जहां से आप डिसएग्री करते हो वो पहले लिखोगे एंड देन यू आर गोइंग टू राइट 2 बॉडी पैराग्राफ्स दैट यू एग्री विथ एंड फाइनली कंक्लूजन. ये फॉर्मेट को मैं फॉलो करता हूं एंड दैट इज व्हाट यू शुड फॉलो. उसके आगे का जो फॉर्मेट था वो भी यही था. व्हाट आई डिड इज, मैंने सिर्फ ये किया है, व्हाट आई हैव डन इज, ये जो पैराग्राफ है वो आगे के फॉर्मेट में यहां पे था, somewhere over here, and this was body paragraph number 1, this was body paragraph number 2, and this was body paragraph number 3. That is also a nice format, there is nothing wrong in that, but you can also follow this format, students. This is also what you can follow. Understood everybody? Yes or no? Don't worry about anything else. कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल सा है. And this entire recording is lecture is going to get recorded, so आप उसको वापस देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. लेकिन अगर कोई चीज पे सिर्फ आप फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, गौर कीजिए. इफ यू ओनली एग्री, आई मीन कंप्लीटली एग्री और कंप्लीटली डिसएग्री, मैं मेरी बात कहना चाहूंगा यहां पे. अगर आप कंप्लीटली एग्री करते हो और कंप्लीटली डिसएग्री करते हो, डोंट वरी मोहित, डोंट वरी इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. मैं शांति से जाऊंगा, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर. अगर आप कोई चीज से कंप्लीटली एग्री करते हो, यहां पे ये गलत है, लेट मी रिमूव दिस. ये नहीं है. सो अगर कोई चीज से आप कंप्लीटली एग्री करते हो या कंप्लीटली डिसएग्री करते हो, देन यू ओनली नीड टू राइट 4 पैराग्राफ्स. इंट्रोडक्शन, आप जिस चीज से कंप्लीटली एग्री करते हो उसका कारण नंबर 1, आप जिस चीज से कंप्लीटली एग्री करते हो उसका कारण नंबर 2, या एंड फाइनली इट इज गोइंग टू बी कंक्लूजन. मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. if you basically are completely agreeing or disagreeing with this, you only need to write 4 paragraphs. First is introduction, second paragraph is going to be, second paragraph ये नहीं आएगा, this is not going to be there. So this is going to be introduction, body paragraph number 1, body paragraph 2, and finally conclusion. Very very simple to understand. Understood students, all of you? Very very simple, nothing to worry. Clear? Got or not? Yes or no? सिंपल सा है, वेरी वेरी सिंपल, डोंट वरी. ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू. ओके, नाउ ये रहा. देखिए ये दिस इज द फॉर्मेट दैट यू शुड फॉलो. क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मेट दैट यू शुड फॉलो. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब ये चीज को याद रखिए. नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर अ न्यू स्लाइड शेयर. जस्ट अ मिनट. Okay, now this is the essay topic that I want you people to go through it. एक बार गौर कीजिए इसको. Just go through this essay topic. Everybody, I don't want anyone to leave. Please go through it, through this essay topic. Living in a foreign country where you have to speak a foreign language can cause serious social problems as well as practical problems. To what extent do you agree or disagree with this statement? Okay. Now, आप जिस कंट्री में रहते हो जहां पे फॉरेन लैंग्वेज बोली जाती है, और तो उससे आपको काफी सोशल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दोनों का अनुभव होता है, बहुत सीरियस. और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, दैट इज बेसिकली सीरियस सोशल प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. सीरियस, आई मीन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सीरियस मतलब बहुत गंभीर. Social problems as well as practical problems. Can anybody tell me what do you mean by social problems, guys? What do you mean by social problems? Yes, guys. What is the meaning of social problems? Practical problems पे मैं बाद में आता हूँ. Social problems का मतलब समझाने का कोशिश करेंगे everybody. जहां पे लोगों से आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल when you interact with people, communicating with others, निजी लाइफ में लोगों से कम्युनिकेशन करते करते, that is what we call as
सोशल प्रॉब्लम्स, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल उनकी भाषा नहीं समझ पाते, आप दोस्त नहीं बना पाते बिकॉज यू कैन नॉट कम्युनिकेट, इज व्हाट वी टॉक अबाउट, या मेकिंग फ्रेंड्स, ऑफिस कम्युनिकेशन, वेरी गुड. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज सोशल प्रॉब्लम्स. और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे जाते हो और यू डोंट नो द लैंग्वेज, तो आप साइन बोर्ड्स ठीक से नहीं पढ़ पाते, आपको जाना कहीं पे और होता है और साइन बोर्ड्स किसी और लैंग्वेज में होता है, एंड यू आर नॉट एबल टू आई मीन लोकेट वेयर यू वांट टू गो, कहीं पे डायरेक्शंस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. जस्ट टू आई मीन जस्ट टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन सोशल प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. नाउ कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग? कैन वी कंप्लीटली एग्री, कंप्लीटली डिसएग्री, मोस्टली एग्री या मोस्टली डिसएग्री? चलिए, try to think on this. It is very very important topic. बहुत मजा आएगा आपको. विशाल, अगर आप इससे मोस्टली एग्री करते हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो. इस पे अगर आप मोस्टली एग्री करते हो तो फॉरेन क्यों जाना चाहते हो भैया? एंड डू यू बिलीव दैट सब लोगों को वहां पे प्रॉब्लम्स होती है? चलो चलो बोलो, गौर से सोचो, जरा गौर से सोचोगे तो मजा आएगा, कुछ चौथा ही ऑप्शन निकलेगा, सोचो. वेरी गुड मिरल, वेरी गुड. अब मिरल हैज गेट गिवन मी द राइट आंसर. इस पे आप सोचो क्या करोगे. देखिए, इस पे कंप्लीटली एग्री और कंप्लीटली डिसएग्री करना मुश्किल मुश्किल है. लेट्स जस्ट ट्राई टू लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. वेरी गुड, वेरी गुड. आगम हैज आल्सो गिवन मी द राइट आंसर. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस पे मोस्टली एग्री और मोस्टली डिसएग्री को तो कर ही नहीं सकते आप. इट इज वेरी डिफिकल्ट. सर, मैं चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ये कहना तो मुश्किल है. यू कैन नॉट से दैट आई एम नॉट गोइंग टू फेस, मेनी स्टूडेंट्स इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ देयर, जैसे कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो उससे आप प्रॉब्लम फेस करते हो, वो बात सही है. बट दिस आर नॉट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर गोइंग टू बी फॉरएवर. ये लाइफ टाइम नहीं है, इनिशियल प्रॉब्लम्स है, इजंट इट? ये इनिशियल प्रॉब्लम्स है. लेट मी टेल यू फर्स्ट. कुड यू प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट? फॉर एग्जांपल, दिस आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. यू कैन नॉट डिनाई कि दैट ये प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करते, लेकिन ये प्रॉब्लम्स ज्यादातर पहले पहले होती है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, एक महीना, कभी कभार एक महीने के लिए. ज्यादातर केस में ये प्रॉब्लम पहले होती है और बाद में निकल जाती है, बिकॉज यू स्टार्ट गेटिंग अकस्टम विद द थिंग्स, इजंट इट? हाँ या ना? yes or no? You basically face problems initially, but then you get accustomed with the things. Understood? Okay. तो अब सोच के बताओ मुझे, आप क्या करोगे? आप ये तो नहीं कह सकते कि इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो है, आप जानते हो. आप ये भी कह नहीं सकते कि हाँ ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है. क्या ऐसा होता है कि आप जाते हो तो लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम रहती रहती, तो आप क्यों रहोगे वहां पे? इज इट गेटिंग क्लियर? नाउ यू आर एबल टू गिव मी द करेक्ट आंसर. तो आप ये कहते हो कि ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये बेसिकली इज नॉट समथिंग दैट आई वुड टोटली एग्री और कंप्लीटली मोस्टली एग्री. ये जो आंसर है, इसका आंसर है मोस्टली डिसएग्री. क्या होगा इसका? मोस्टली डिसएग्री. अब पता चल रहा है आपको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये आप कहोगे ये प्रॉब्लम्स है, उससे मैं डिनाई नहीं करता, बट यू कैन नॉट से दैट दिस आर द प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग टू रिमेन फॉर एवर. दे आर द प्रॉब्लम्स, बट ये सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं है. यहाँ पे एक बहुत अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया है, सीरियस. ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम्स है. आप उससे बिल्कुल मोस्टली डिसएग्री करते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप ये कहना चाहते हो कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं है. विदिन probably 3 to 4 weeks, or after a month or so, you basically would be able to tackle this. Yes or no, everybody? Yes or no? पता चल रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? ग्रेट, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. ओके, अब हम उस पे क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ ऐसे. पहले तो ऐसे को देखिए, ओपिनियन ऐसे. आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू दिस स्लाइड फास्टर. तो इंट्रोडक्शन ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे आपको लिखना है स्टूडेंट्स. आई वांट यू पीपल टू yeah, I want you people to at least probably, this is a recording, Shreyas, you will get the recording tomorrow, don't worry. ओके, सो दिस इज हाउ. आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए. ओके, पहले देखो ध्यान से. आई एम राइटिंग द इंट्रोडक्शन, प्लीज देखिए, गौर कीजिए. तो इसका कैसे फॉर्मेट बनाएंगे आप? यू आर गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन. आप ये कहना चाहोगे कि ये प्रॉब्लम्स तो है, उसको सेकंड पैराग्राफ में लीजिए. एंड इन द थर्ड बिगर पैराग्राफ यू आर गोइंग टू ट्राई टू से दैट यस देयर आर प्रॉब्लम्स, लेकिन ये ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है जो बहुत सीरियस है. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड यस वी आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स, third a bigger paragraph in which you are going to say
बहुत ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसको टैकल कर पाएंगे, कैसे टैकल कर पाएंगे, आई एम गोइंग टू कम टू दैट पार्ट, and finally is going to be the conclusion. So let us go to the introduction faster. It's almost 1.5 hours, students. It is often argued that people living in a country where their non-native language is spoken, I am just paraphrasing, can create lots of social and practical issues. मैं ये मानता हूँ, while I do admit that this can be quite challenging in the first few weeks, in my opinion, most people will overcome the language barrier fairly quickly. मैं ये मानता हूँ कि ये पहले इनिशियल प्रॉब्लम है, लेकिन इसको लोग ओवरकम कर पाएंगे. दिस इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन. गाइज, अंडरस्टूड? यू आर गोइंग टू गेट द स्लाइड्स फॉर दैट, नॉट एन इश्यू. Okay, second paragraph. One of the major problems faced by the people in the foreign for not being able to speak the native language can affect their ability to socialize and make friends at work. This can also affect their work efficiency because they are not able to give or take instructions. The practice, ये जो पहले जो sentences थे वो social problems वाले थे. Now the sentences which are going to come are practical problems. The practical problems that people might face include shopping, getting medical help, or asking for directions, which can be equally challenging or sometimes challenging for someone who do not speak or understand the native language. ये practical problems है. This can lead to frustration and a feeling of helplessness. काफी कबार frustration आ जाता है, यार ये क्या हो गया, मैं वापस यहाँ पे आया ही क्यों. That is basically the thing. So this is the body paragraph कि हम यहाँ पे मानते हैं कि wherein there are problems and I accept that. अब बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आई एम गोइंग टू ब्रिंग कि भाई ये जो दूसरा पैराग्राफ मैं लिखूंगा कि ये प्रॉब्लम्स तो है, तो अब बताएंगे. हाउएवर, इन माय ओपिनियन नन ऑफ दिस डिफिकल्टीज कॉज एनी सीरियस इश्यूज, बिकॉज वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का इस्तेमाल किया था, सीरियस. तो ये सीरियस नहीं है. दिस इज बिकॉज इन ऑर्डर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज वी ओनली हैव टू गेट एक्सपोज टू इट. हमें नई लैंग्वेज के लिए हमें अपने आप को उस लैंग्वेज से एक्सपोज करना पड़ेगा. It is also widely known that learning a foreign language in a foreign country is actually easier than learning it while we are still in our own country. ये उससे बेहतर ये है कि हम फॉरेन कंट्री में इसको सीखें, क्योंकि फॉरेन कंट्री में लैंग्वेज सीखना वो बहुत इजी है इन कंपैरिजन टू द नेटिव कंट्री. Also, people who are interested in moving abroad can help themselves by taking a small course in that language or learn from number of tutorials available online, which will help them to adjust quickly and efficiently. जैसे कि आप लोग अभी क्या कर रहे हो, IELTS तो कर रहे हो. IELTS क्यों कर रहे हो? Not only to get an admission or to get a visa, but ये IELTS जो आपने सीखा है, जो आपका language improvement हुआ है, will also help you when you go to countries like Canada and Australia. तो ये आप ये भी कर रहे हो, तो वो भी तो आप सोच, मतलब अगर आपको जाना है और प्रिपेयर्ड हो तो आप थोड़ा सा ट्यूटोरियल करके जाओगे तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, another thing that makes life easier for immigrants is the universal acceptance of English. This knowledge is more than enough to survive the first few weeks in a foreign country. अगर आपके पास थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज है तो आप कहीं पे भी जाओ तो इंग्लिश से सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि कहीं किसी भी कंट्री में जहां पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वहां पे भी छोटी मोटी मात्रा में इंग्लिश का इस्तेमाल तो होता ही है. तो अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आप ये छोटा मोटा लैंग्वेज का बैरियर है उसको आप ओवरकम कर पाओगे. जैसे कि फॉर इंस्टेंस, इवन इन कंट्रीज लाइक रशिया, जापान और चाइना, where English is not spoken widely, it is still possible to find people who can read, write and speak it reasonably well. तो आपने देखा होगा इन द फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन था, सेकंड पैराग्राफ में हम लोग मानते हैं कि प्रैक्टिकल और सोशल प्रॉब्लम्स थोड़े से इनिशियली है, लेकिन इन द थर्ड पैराग्राफ वी आर ट्राइंग टू टेल कि भले ही वो प्रॉब्लम है लेकिन वो ऐसे नहीं है. इनफैक्ट हम वहां पे जाएंगे, महीना डेढ़ महीना रहेंगे तो वो लैंग्वेज सीख पाएंगे. और दूसरा, हम क्लासेस भी कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, और अगर इंग्लिश भी छोटी मोटी जानते हैं तो हम अपना काम बना लेंगे. फाइनली द कंक्लूजन पार्ट. To conclude, although many people believe that having to converse in a foreign language can cause problems for immigrants, मैं ये मानता हूं, लेकिन in my opinion ये big issue नहीं है, वो serious issue नहीं है, because with a little effort most people can learn the foreign language and adapt to the new environment within a few weeks. Is it getting clear, students? तो टोटल कितने पैराग्राफ हो गए आपके? 4 पैराग्राफ. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया? भले आप लिख पाओ ना लिख पाओ वो अलग बात है, बट ये मोस्टली डिसएग्री वाली चीज मैं आपको बताना चाहता था कि आप वैसे लिख सकते हो. क्लियर और नॉट? अंडरस्टूड? डोंट वरी इफ यू आर नॉट एबल टू राइट एन ऐसे,
बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि मोस्टली डिसएग्री वाला ऐसे है, उसको आप कैसे लिख सकते हो. अंडरस्टूड? यस और नो? यस यस, यू कैन गिव योर ओपिनियन. आप ओपिनियन तो दे रहे हो अपेक्षा. ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू स्टूडेंट्स. सो अब मैं ऐसे देना नहीं चाहूंगा आपको. यू पीपल हैव बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे हो गए. लेकिन अब बहुत टाइम हो गया, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन ऐसे टू राइट राइट नाउ. आप यही ऐसे मुझे लिख के अपनी भाषा में बता सकते हो. आई वांट यू पीपल टू राइट दिस ऐसे एंड शो इट टू मी. आई एम जस्ट कमिंग बैक टू द मूड पार्ट ऑफ द ऐसे. जस्ट लेट मी गिव मी वन. यही ऐसे मैं चाहूंगा आप उसको खुद अपने उसमें लिख के बताए. आई वांट यू पीपल टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and you can write this essay in your own words. I am going to not upload this lecture probably by by the end of tomorrow evening. So by that time you can write an essay on this and show it to me. वो आप मुझे send कर सकते हो and I'll be able to comment on that. Thank you so much students, thank you so much. It was basically a very nice lecture and I hope you enjoyed the lecture everybody. First of all, it is almost 1.5 hours. तकरीबन 1.5 घंटा हो गया. Okay, thank you so much. Thank you so much, students. Thank you. Great. Bye, students. Very good night. आगे हम 2 घंटे भी जा सकते, लेकिन सोना तो पड़ेगा ना. Okay, thank you, sir. Thank you so much. You people are very, very good. You people are so cooperative. You can mail me tomorrow, Dhruv. You can mail me the essay tomorrow. Don't worry. But make it sure that you mail me before 12 p.m. tomorrow. Okay? Thank you so much, students.